Hello and welcome to today's special podcast. I'm Aprajita Ambastha, your host for today, an MBA in Communication Management with 3 years of work experience in the advertising industry. It gives me immense pleasure to welcome today's guest, Captain Sanjay Prasad, who has served the Indian Navy for 32 years and who also happens to be my father. He is currently running an NGO called the Ripra Foundation that works towards the betterment of the society through educational and environmental initiatives. So, welcome today, and how are you feeling, Papa? Thank you, Aprajita. It's my good luck that this is my first podcast and you are hosting this podcast. Thank you very much. Yeah, very well. I am very glad that I got this opportunity as well. So, before we begin with the formal question answer round, I would like to know your main purpose of conducting this podcast. Right, Aprajita. You have asked a very right question. Why I have come to this studio and why this podcast recording is there from my side. Simply because after retirement, I retired during COVID period 2021 after complete 32 years of service. After that, I felt that whatever experience I have gained in 32 years, that should not die with me. So I wanted to educate youth people. Today's youth in India has they have got very different idea about our own country. I will not go to the political aspect of that. I will focus mainly on the youth converting to military life, and I will narrate in simple language. And Aparajita, since it's my desire that my this podcast should reach to rural background more than the urban background, because in urban India there are so many facilities available for youth. They can read newspaper, they can read different magazines, different guide, different books, different social media platforms are there where they can get educated. So let us be in English so that it can reach to rural background also. Basically, when I joined armed forces, I found that conversion from a civilian life to military life is a very tough, I mentally and physically both. Yeah, I think that's a very right thought that English में बात करते हैं because the main purpose of this podcast is to reach the rural pockets to everybody whether somebody knows English or not so that ज्ञान सबके लिए समान होना चाहिए. So on that note, I think the first question would be and everybody would like to know that कि आपका बैकग्राउंड क्या था जब आप यूथ थे एंड हाउ यू गॉट मोटिवेटेड टू जॉइन द सर्विसेज बिकॉज आर बैकग्राउंड में कोई है नहीं जिन्होंने डिफेंस ज्वाइन किया था तो आपको कैसे पता चला डिफेंस सर्विसेज के बारे में एंड देन आपको कैसे मोटिवेशन मिला टू जॉइन सच अ न्यू फील्ड. बिल्कुल सही अपराजिता, आपने मेरे नर्व को पकड़ लिया. मेरे पॉडकास्ट का मेन पर्पस यही है. मैं एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में पला बढ़ा हूँ. डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, उस समय वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था. जब मैट्रिकुलेशन में मैं आया तो टाउन डिस्ट्रिक्ट टाउन में कन्वर्ट हुआ. अदरवाइज वो संथाल परगना था. संथाल परगना मीन्स एसटी एरिया में आता था. और उस ज़माने में हमारे पास ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं होता था ये जानने के लिए कि हमारा आगे का करियर क्या हो. मैं रेलवे बॉयज़ हाई स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, साहेबगंज से. फादर मेरे रेलवे में थे. रेलवे कॉलोनी का लाइफ मैं देखा हूँ. और रेलवे स्कूल के थ्रू मुझे 15 अगस्त का परेड देखने को मौका मिलता था जो बहुत बड़े लेवल पे होता था. उस परेड में एक बार बारिश होने लगी तो मेरे प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल थे वहाँ पे, और मुझे अभी भी याद है उनका डायलॉग. हम लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गए, कुछ शेड खोजना शुरू किए. उन्होंने बोला था कि आप कागज़ के नहीं बने हुए हो, आप गलोगे नहीं. और पूरे नेशनल एंथम तक हम पानी में खड़े होकर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी देखे. और वहाँ से मेरे दिल में कुछ कुछ बातें आई कि नेशन के प्रति यदि अपने को डिवोट करना है, और जो एनसीसी के कैडेट्स को, स्काउट के कैडेट्स को जब मार्च पास करते देखते थे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था. और पता नहीं एक अंदर में एक अंदर उसी समय से एक कीड़ा जागी. कीड़ा बोलो या अच्छी बात, अच्छे शब्दों में बोलो तो एक भावना जागी कि मैं कुछ ऐसा करियर चूज करूं जिसमें मुझे आगे भविष्य देश के प्रति कुछ डायरेक्ट करने का मौका मिले. हालांकि आज के डेट में मैं सिर्फ फौजी ही देश के लिए कर रहे हैं ये मैं ऐसा कभी बोलूँगा नहीं. डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे ज़्यादा कंट्री को कंट्रीब्यूशन तो करते हैं सफाई वाला.
जब मैं ऑफिस में जाता था 8:30 और 9 o'clock ऑफिस स्पिक एंड स्पैन मिलता था, मुझे लगता था कि ये सफाई वाला यदि ना रहें तो मेरे ऑफिस का इन्वायरमेंट क्या होगा। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली, everybody is doing country service on their own, but in armed forces, since we have to live and die, that's why it is more challenging, and conversion from a civilian life to military life is very difficult. When I joined armed forces, मैं फिजिकली बहुत कमज़ोर था। इनफैक्ट मेरा वेट 46 kg हुआ करता था। तो एनीवे मैं उन बातों पे बाद में आऊँगा। तो रेलवे स्कूल से जब हम लोग पास आउट हुए, हम 4 भाई थे, चारों भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे। फादर का मोटिवेशन, उस समय ज़माना था मेडिकल और इंजीनियरिंग का। हमारे में 4 भाइयों में से एक डॉक्टर हैं, हम 2 इंजीनियर हैं, और हमारे से छोटा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है, वो सीनियर पोस्ट पे है। तो हमें उस समय एक ऐसा लगता था कि इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, और वाकई था भी उस समय, मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए लोग दूर दूर तक कोचिंग लेने जाते थे। ये बात अलग है कि मैं कभी कोचिंग नहीं लिया। तो मैं बीच बीच में ये बातें इसलिए बोलता हूँ कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए भी मैं मोटिवेशनल बातें बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं था कि भगवान के आशीर्वाद से हम कोचिंग या ट्यूशन अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जो आईसीएसई और सीबीएसई का सिलेबस होता है, जो किताब होता है, उस किताब को यदि आप लाइन टू लाइन पढ़ें, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें और टीचर्स की बातों को पढ़ें, थोड़ा मैगजीन बुक्स ये टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, तो ये सारे कंपटीशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कोचिंग की दुनिया जो है, आपका समय बर्बाद होता है। इनफैक्ट अपराजिता, आपको याद होगा, आप दोनों को भी मैंने यही बोला था कि कोचिंग में स्कूल में 8 घंटे 6 घंटे जाते हैं, 2-3 घंटा खेलने में जाता है, फिर कोचिंग में यदि 4 घंटे 5 घंटे दोगे तो अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ मिलेगा। और यदि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है तो आप ये कोचिंग और नोट पढ़ के कितना भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी हैज़ टू बी देयर। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं कभी कोचिंग नहीं लिया, और मेरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे कमांड था। केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक हुआ करता था मेरा, बट फिर भी मैंने इंजीनियरिंग क्रैक किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद कैंपस इंटरव्यू में मैं आर्म फोर्सेस के लोग आते थे, आर्मी स्पेशली नेवी के ज़्यादा आते थे। तो मैं नेवी एसएसबी भी इलाहाबाद में क्लियर किया था, बट सॉरी आर्मी का एसएसबी, बट नेवी में मेरा कैंपस इंटरव्यू में पहले हो चुका था। और सभी ने बोला कि ज्वाइन द नेवी, सी द वर्ल्ड, बड़े शहरों में रहने का मौका मिलेगा, वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है थ्रू सर्विसेज ओनली। I mean, here I would like to take a pause and ask a follow-up for the viewer जो भी देखेंगे और आपसे मोटिवेट होंगे कि डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के कितने तरीके होते हैं। एक आपने बोला कैंपस पे भी आता है, बाकी और कौन से? हाँ, मैं आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर, लेकिन मैं ऑफिसर कैडर को ज़्यादा कवर करूँगा। आप यदि 12th करके जाना चाहते हो तो एनडीए का एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम करो और उसके बाद एसएसबी क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आपका ऑल इंडिया मेरिट बनता है, फिर अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट होते हो। ग्रेजुएशन करके जाना चाहो तो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, सीडीएस का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद फिर एसएसबी में कॉल होगा, एसएसबी के थ्रू आप फिर ऑल 3 विंग्स में जा सकते हो। एनीवे मेरा आज का मोटो वो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे किताबें हैं, गाइड हैं, एसएसबी गाइड्स हैं, उसको आप पढ़ लिया करो। एसएसबी के लिए स्पेशली मैं ये बोलूँगा, जब आपने पूछ ही लिया, एसएसबी एक साइकोलॉजिकल 5 डेज टेस्ट होता है, 5 to 6 डेज। उसमें आपके साइकोलॉजी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। आपका एटीट्यूड यदि है तभी आप सेलेक्ट होंगे। आप आर्टिफिशियल बन के दुनिया भर का कोचिंग करके आप यदि आप जाओगे उसमें, तो आपकी सच्चाई उसमें निकल जाती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ जॉब के लिए आप आए हुए हो। आर्म फोर्सेस में जब तक आपका डेडिकेशन, डिवोशन और मोटिवेशन नहीं होगा, आप सिर्फ एक जॉब की तरह आर्म फोर्सेस की लाइफ को नहीं लीड कर सकते हो। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या होता है जब हम सिविल लाइफ में रहते हैं, सिविल लाइफ का एक अलग दुनिया होती है, कंफर्ट जोन होता है, अपने लिए टाइम रहता है, करो या नहीं भी करो तो भी ठीक है। पर आर्म फोर्सेस में हम वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इंस्टीड ऑफ गिविंग यू फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आई विल नरेट माई लाइफ व्हेन आई ज्वाइन आर्म फोर्सेस। मुझे क्या हुआ, मैं 46 kg वेट का हुआ करता था। खेल कूद में रहता था मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पीछे पीछे ही रहता था, क्योंकि फिजिकली आप वीक रहो तो बहुत फ्रंट लाइन प्लेयर नहीं बन पाते हो।
जैसे फुटबॉल वगैरह मैं खेलता था या हॉकी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, तो मैं थक जाता था। तो एनीवे, विद दिस बैकग्राउंड मैं जब इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस में नेवी आई और हमारा सिलेक्शन हुआ और हम बैंगलोर एसएसबी में गए, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं वहाँ पे मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। मेडिकली अनफिट इसलिए डिक्लेयर किया कि मैं अंडरवेट था, और अंडरवेट में 10% प्लस माइनस होता है। और जब आर्म फोर्सेस में मेडिकली आपको अनफिट करते हैं तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जैसे मेरे आई साइड में चश्मा लगाता था, लेकिन उसका पावर इतना नहीं था कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता था। तो उसको भी एक लॉजिक लगा करके 2-3 और मैं भूल गया हूँ, तो मुझे मेडिकली अनफिट कर दिए। तो मैं बहुत मायूस हो गया, बेंगलोर गया था। कॉलेज की दुनिया में मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे कम होते थे, पैसे इतने होते थे ताकि मंथली एक्सपेंडिचर हम हॉस्टल लाइफ में जीत सकें। मैं इंजीनियरिंग बीआरटी सिंदरी धनबाद से किया हूँ, और जब वहाँ मेडिकली अनफिट हो गया मैं, तो मैं मायूस हो गया। बाकी जो सेलेक्ट हुए थे उसमें से मेरा एक जिगरी दोस्त था। जिगरी दोस्त कहने का मतलब 5-6 दिन का जो एसएसबी होता है, उसमें से आपके क्लोज फ्रेंड भी बन जाते हैं, जिसके साथ आप बाहर शाम में निकलते हो। और स्पेशली बैंगलोर में जब फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में मैं आ गया था, तो हमारे कॉलेज में ड्रिंक्स वगैरह का कल्चर उस ज़माने में कम था। आजकल तो लोग स्कूल डेज से ड्रिंक्स पीते हैं, सिगरेट पीने की आदत है। स्मोक तो मैं करता था बट उतना ज़्यादा नहीं। बैंगलोर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ओपन बियर मिलता था पब में, मतलब आप पूरा बॉटल नहीं भी लो तो एक ग्लास ले सकते हो। तो हमारे कुछ दोस्त शौकीन थे तो मुझे ले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एनीवे, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, जब मैं अनफिट हो गया तो मायूस था। तो उस समय तो मुझे रैंक वगैरह पता नहीं चलता था। जो मेडिकल का एक जेसीओ था, पता नहीं, वो साउथ इंडियन था, उसने अपने लैंग्वेज में बोला, दुखी क्यों है? तो मैं बोला, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, बहुत जोश से आया था, मुझे लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो मेडिकल ही रिजेक्ट हुआ है ना, तो एक काम करो, अपील मेडिकल बोर्ड में डाल दो। तुम्हारे घर के जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके आसपास जो है वहाँ पे आप डाल दो, ताकि आपका समय ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। और वो आपको अपील मेडिकल बोर्ड में कॉल आएगा, फिर वहाँ पे आपका रिव्यू होगा। तो मैं बोला ठीक है, फॉर्म दे दो। फॉर्म भर दो। तो फॉर्म भरने का चार्ज था 100 रुपीज़, और अपराजिता मुझे अभी भी याद है, मेरे पॉकेट में 150 रुपीज़ था, और बैंगलोर से मुझे हावड़ा होते हुए सिंदरी आना था। तो मैं सोचा ये टिकट तो खैर एसएसबी दे देती है, मतलब आर्म फोर्सेस की तरफ से जब आप एसएसबी जाओ तो रिटर्न आने जाने का टिकट मिलता है। तो टिकट हो गया था, पर रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए तो पैसा चाहिए था। तो मैं फिर बहुत कैलकुलेट किया, मैं बोला चलो ये 100 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, दे देता हूँ, मेरे पास 50 रुपया बचेगा, मैं कुछ करके 1.5 डे की जर्नी थी, पूरा कर लूँगा। तो मैंने फिर दे दिया। मतलब एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड एक्चुअली, राइट, आप कुछ सोचते नहीं हो। डेस्टिनी। मैं नहीं भी दे सकता था, चलो यार रिजेक्ट हो गया भी बहुत है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है उस समय। और हमारे बैच के लोगों को पब्लिक सेक्टर में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक आसाम डिवीज़न का अलग एग्ज़ाम होता था उस समय, उसमें रिटर्न में क्वालिफाई हो चुका था। तो एनीवे, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, मैं 100 रुपीज़ दिया। अपील मेडिकल बोर्ड में मैंने मुझे बनारस और कलकत्ता में ऑप्शन देना था, मैंने कलकत्ता ऑप्ट किया। कलकत्ता प्रैक्टिकली मेरा ननिहाल है, नाना नानी वहीं रहते थे, मामा वहीं थे पोस्टेड। तो मैं कलकत्ता ले लिया। अलीपुर मेडिकल कॉलेज में मेरा अपील मेडिकल बोर्ड का आया, तो मैं वहाँ हमेशा 10 दिन चलता रहा। और क्या हो जाता है कि जब आप किसी भीड़ में जाओ तो आपको तुरंत नंबर भी नहीं आता है। कई दिन में जाता था, मेरा नंबर भी नहीं आता था, मैं लौट के आता था। हाफ डे उधर कॉलेज छूट रहा था, कॉलेज का ड्राइंग का सेशनल था। थर्ड ईयर में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो थर्ड ईयर के फाइनल पेपर्स का टाइम आ रहा था। कभी मुझे ऐसा लगा कि छोड़ कर निकल जाऊँ, यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है। बट एनीवे, करते करते, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, मेरा नंबर आया। और अंडर वेट के लिए मैं थोड़ा सा तब तक वेट गेन किया था, और मैं हाफ डजन केला खा करके जा करके लाइन में खड़ा हो जाता था, ताकि थोड़ा 1 kg वेट बढ़ जाए। जो भी उस समय सिखाया जाता है वो करना पड़ता है। तो करके फाइनली मैं मेडिकल बोर्ड में क्लियर हो गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं एकेडमी ज्वाइन कर लिया फाइनल ईयर इंजीनियरिंग करने के बाद। जब मैं एकेडमी आया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे शर्म नहीं आती है, गोवा में एकेडमी था, और एक ज्वाइनिंग लेटर आता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला नहीं था। आपने देखा होगा फौजियों का एक काला सा बड़ा सा बक्सा होता है, जिस बक्सा में वो सारा सामान लेकर के आते हैं। मूवी वगैरह में तो आप लोग सब ये सब चीज़ देखे ही हुए हो, और वो काला बक्सा आज भी चलता है। काला बक्सा सूटकेस में भले बदल गया हो।
तो वो मुझे मिला नहीं था, तो मैं सारी तैयारी के साथ आया नहीं, और मैं ये सोच के आया मैं गोवा जा रहा हूँ, पैसे मिलेंगे इतना, गोवा के बीच पे घूमूंगा, बियर पीऊँगा, मैं लाल कलर का टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, स्टाइल का टी शर्ट, और उस समय मैं हेयर अपना रखता था अमिताभ बच्चन स्टाइल में कान के ऊपर, ये सारा लेके मैं पहुंच गया वहाँ पे जोश में। तो जाते के साथ तो सबसे पहले सामान रखा, और सामान रखने के बाद दो बंदे आए जो जेसीओ होते हैं कि चलो वेलकम टू एकेडमी, और पहले ये बताओ तुम्हारा राशन क्या है। मैं बोला यार राशन, मतलब इस तरह का वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं था कि राशन क्या होता है। राशन तो जब हम कॉलेज डेज में थे तो राशन की दुकान में राशन लेने जाया करते थे जिसमें गेहूँ चीनी किरोसिन ऑयल मिलता था उस समय। तो मैं बोला राशन क्या होता है, तो उसने डांटा मुझे, बोला राशन नहीं जानता है, तो वी या एन वी है। बोले वी और एन वी राशन मतलब क्या, राशन तो खाने पीने की चीज़ होती है, वी और एन वी क्या होता है। तो फिर उसने बताया, उसको समझ में आ गई कि बात की नहीं जानता है ये, तो जानते तो होंगे ही, मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे। फिर बोला वी मतलब वेजिटेरियन, एन वी मतलब नॉन वेजिटेरियन, नहीं सॉरी वी और एस, तो वी मतलब वेजिटेरियन, और नॉन वेज को आर्म फोर्सेस में स्टैंडर्ड राशन बोलते हैं। तो मैं बोला ये वी एस क्या है, फिर उसने एक्सप्लेन किया, तो मैं बोला वेज खाता हूँ मैंने कभी नॉन वेज खाया ही नहीं था। और ठीक है, नोट वोट कर लिया मेरा राशन वासन करके, बोला चलो अभी बार्बर के शॉप में। मैं गया बार्बर के शॉप में, दो तीन बार्बर था दुकान में। उसमें जो मेन बार्बर था वो गुफी पेंटल टाइप का उसका चेहरा था, एक आंख थोड़ा बंद रहता था, और गोवन था। उसने मुझे बैठने बोला तो मैं बैठ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि बाल बिल्कुल जीरो कट कटाना होगा, तो उसने अपना कैंची वैची लगा दिया। तो मैं बोला भी यार मैं अमिताभ बच्चन कट रखता हूँ, तुम ये बाल मेरे ऐसा क्यों काट रहे हो। तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। एकेडमी में सब थप्पड़ ही मारते हैं उस थप्पड़ की आदत पड़ जाती वो है। बहुत सारी स्टोरीज तो हम लोग को भी नहीं पता है। तो वहाँ पे जब काटा तो वहाँ तक फिर मैंने बर्दाश्त किया कि चलो बाल तो काट रहा है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएंगे, आम प्रोसेस में बाल छोटे होते हैं। फिर जब उसने मूछ पे उस तरह रखा, मूछ काटना चाहा, तो मैंने बोला यार मेरे फादर अलाइव है, हमारे यहाँ जब तक फादर जिंदा हैं मूछ नहीं काटा जाता है। फिर उसने एक थप्पड़ मारा और तब तक मैं आधा मूछ गायब था। एनीवे, तो हमारा होलिया उस समय तक बदल गया था। फिर मैंने मिरर देखा तो मुझे लगा कि यार मैं तो आधा फौजी तो अभी दिखने ही लगा हूँ। फिर धीरे धीरे सब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, पीटी, परेड, स्विमिंग। तो पीटी तक तो ठीक था। परेड में मैंने जैसा बताया मैं 46 केजी होता था, बहुत लीन एंड थिक। जब राइफल लेके परेड करना पड़ता था मैं थक जाता था। और स्विमिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और स्विमिंग पूल में जब अंदर जाते थे तो ऐसा लगता था इससे अच्छा तो सुसाइड कर लें। तो धीरे धीरे लाइन पे आने लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फिर एकेडमी से छुट्टी लेके घर पे आया प्रॉपर चैनल में, और घर पे आके फादर को मैंने बताया ये हो। तो फादर जो भी प्रोसेस होता है, फादर हमारे 29-30 बॉर्न फादर थे उस ज़माने के, तो बहुत प्रिंसिपल वाले आदमी थे। तो उनको लगा कि ये छोड़ के आ गया है, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं छुट्टी लिया हूँ। छुट्टी में एक फॉर्म मिलता है, छुट्टी मैंने दिखाया था उनको। तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसमें छोड़ने के लिए पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी फादर मेरे तैयार थे। इसी बीच में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो दुखी होने के बदले मैं बहुत खुश हो गया कि चलो इसी बहाने अब जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो एनीवे, फ़ौज में विदाउट लीव यदि आप ओवर स्टे करोगे तो आप भगोड़े कहलाते हो, मार्क रन कहलाते हो। तो मैं भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेरे लिए वारंट वगैरह आया। तो पुलिस जब आती थी तो पुलिस भी कन्विंस करती थी आप चले जाओ। जो जो भी था उतना तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है आज के डेट में। फिर बाद में जब ज़्यादा डिले हो गया तो नेवी की पुलिस, नेवल पुलिस जो आते हैं, एक ऑफिसर और दो जवान साथ में आ गए थे। और वो फिर मुझे, तो तब तक मैं माइंड मेकअप कर लिया था कि चलो ठीक है जाना है। तो फ़ौज के लैंग्वेज में भगोड़ा था मैं, बट अपने आप में मैं भगोड़ा नहीं था। फादर मेरे चिट्ठी वगैरह लिखते रहते थे कि ही डजंट वांट टू ज्वाइन, सो काइंडली टेल मी व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर। तो प्रोसीड्योर ऐसा होता नहीं है। तो फिर जब मैं वापस आया तो प्रॉपर हथकड़ी वगैरह लेके आए थे अपने बैग में, और मुझे डायरेक्ट दिखाने के बदले इनडायरेक्टली दिखाते भी थे कि मेरे पास हथकड़ी है, भागने की कोशिश नहीं कर रहा। बट मुझे भागना तो था नहीं, इरादा था नहीं भागने का। फिर मैं एकेडमी में वापस आया तो मुझे ओपन कस्टडी में रखा गया। ओपन कस्टडी में रहते रहते क्या हुआ कि बड़ी व्हाट सा, इज एन ओपन ओपन कस्टडी? कस्टडी मतलब दरवाज़ा बंद नहीं होगा, दो संतरी खड़े रहेंगे। तो अब बाकी जो कैडेट होते थे वो आकर के वहाँ खड़े रहते थे कि ताकि मैं भाग ना जाऊँ। मतलब भगोड़ा, ऑन पेपर भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया, बट प्रैक्टिकली मैं भगोड़ा था नहीं। बट जो सिस्टम होता है आर्म फोर्सेस का अपना सिस्टम है। तो दो संतरी खड़े रहते हैं कि रात में मैं भाग ना जाऊँ।
जबकि मेरा इंटेंशन भागने का था भी नहीं, जबकि मैं ऐसे भी भागा नहीं था, मैं छुट्टी लेके ही गया था। बट ऑन पेपर थियोरेटिकली आर्म फोर्सेस में विदाउट लीव यदि आप रह गए तो भगोड़ा कहलाते हो, मार्क रन बोलते हैं उसको। तो वो धीरे धीरे उस ओपन कस्टडी में मुझे बहुत आनंद आने लगा। तरह तरह का खाना आता था, दिन में 2 बार डॉक्टर देखने आते थे। मेरे पास से जितना भी मेरे मैगजीन वगैरह मैं बुक लाया था सब ले लिया गया कि यहाँ पे पढ़ना अलाउड नहीं है। सेविंग किट हल ले लिया गया। बोला कि आपको पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गीता और महाभारत रामायण दूंगा। तो मैं धीरे धीरे समझ में आने लगा, क्योंकि दिमाग से तो मैं तेज़ था, मैं देखता था पहले न्यूज़पेपर वगैरह में कि लोग कस्टडी में सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके कारण हो सकता है ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। एनीवे धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं एक सिविलियन लाइफ से जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ मिलिट्री लाइफ में, या कोई भी आप रूरल बैकग्राउंड के लोग जो आप इंटरव्यू तैयारी करते हो, बुक पढ़ के तैयारी करते हो, वो मेरे इस स्टोरी से आप ये सीखो कि जब सिविलियन लाइफ से जब आर्म फोर्सेस में आप आते हो, तो जैसे एकेडमी में इंटर किए तो एकेडमी 1 वे ट्रैफिक है। जब तक आप वहाँ आने के बाद ड्रिल का एग्ज़ाम एक होता है वो पास ना करो, स्विमिंग टेस्ट पास नहीं करो, आपको एकेडमी से बाहर निकलने को नहीं मिलता है। तो आप गोवा घूमना तो छोड़ो, आप एकेडमी के अंदर ही घूमते रहते हो जब तक ये पास ना करो। और चूँकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, ड्रिल में मैं कमज़ोर था, तो ये सब पास करने में मुझे टाइम लगा। बट धीरे धीरे लाइन पे चीज़ें आ गई और मैं अच्छे से एकेडमी को फिर मैं अडॉप्ट किया और सारे एक्सरसाइजेज वगैरह मैंने अच्छे से किया। तो जो लोग आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं स्पेशली ऑफिसर कैडर की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली जो जवान कैडर में जाना चाहते हैं, करीब करीब उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन सेम ही है। तो आप सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें तैयारी, पढ़ाई के लिए तो मैं बता दिया हूँ आपको। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो गया, रीजनिंग वगैरह जो होता है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग रखो तो आप रिटन टेस्ट निकाल दोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी में जो आपका टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, तो आप फिजिकली अपने को उस लायक बनाने के लिए आप कम से कम 7 से 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस रखो। और स्विमिंग यदि आपको पहले आती है, स्विमिंग आप यदि सीख गए, स्विमिंग अपने आप में इंडिया में एक वो भी एक मुद्दा होता है, बिकॉज हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक सोसाइटी में स्विमिंग पूल की सुविधा नहीं होती है। स्विमिंग की सुविधा यदि होती भी है तो मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हर पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हर स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप यदि स्विमिंग करके आए हो, फिजिकली फिट हो, थोड़ा सिटअप्स पुलअप्स वगैरह करते रहते हो, तो आपको एकेडमी का बिगनिंग वाला जो पार्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने में, सिविल लाइफ से ट्रांसफॉर्म होने में, आपके बोलने का तरीका जो होता है, आपको गाली सुनने की आदत होनी चाहिए। हर चीज़ में जो थप्पड़ पड़ता है एकेडमी में वो पर्पसली होता है। जैसे बेसिकली स्ट्रॉन्ग आप माइंडेड होना मेंटली चाहिए। स्ट्रांग हो, जैसे नेवी को हम लोग बोला जाता है, इट इज़ सर्विस फॉर फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रांग। सो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये सारी चीज़ एकेडमी का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप एक डिफरेंट लाइफ में आ गए हो, और इसमें आपको किसी भी चीज़ में ना का चांस नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, आप किसी चीज़ में ना नहीं कर सकते हो। वो एक डिसिप्लिन लाइफ डिफरेंट है, एक डिसिप्लिन अलग है। तो आप यदि फिजिकली ये सब चीज़ें तैयारी करके आओगे, और जो मैं जो अपराजिता आपने बोला मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं एनजीओ चलाने का मेरा पर्पस यही था कि मैं फ्री में बच्चों को, ऑनलाइन हो या मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, अब तो बच्चे इंटर्नशिप के लिए भी आने लगे हैं मेरे पास। और प्लांटेशन के नाम पे मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं रेलवे कॉलोनी में पला बढ़ा हूँ। मेरे पास मेरे घर में क्वार्टर में बहुत बड़ा लॉन था और हम लोग खुद से पौधे लगाया करते थे। तो एक अंदर से एक प्यार पौधों के प्रति जागा हुआ है, तो मैं वो लगाता हूँ। और मेरे पास अभी कोई कलेक्शन ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेता हूँ मैं। जो दोस्तों से, फैमिली से पैसे आते हैं, आप लोगों से जो आते हैं, उसको मैं इसमें लगाता हूँ। और बच्चों को सिखाने का शौक़ इसलिए आया कि एक आर्म फोर्सेस एक ऐसा सर्विस है ना, जिसको आगे क्या करना है लोगों को पता नहीं रहता है। क्योंकि इसको अब तो पब्लिक डोमेन पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, पहले पब्लिक डोमेन पे आर्म फोर्सेस के लाइफ के बारे में नहीं होता था। तो लोग समझ पाएँ
कि मैं किस करियर में जा रहा हूँ, इस करियर का फ्यूचर क्या है। अब लोग रैंक देखते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, ये सब देखते हैं, मेजर जनरल, जनरल, सिर्फ रैंक से उनको अट्रैक्शन होता है। बट उस रैंक को पाने के लिए और उस रैंक तक पहुंचने के लिए जो डिफरेंट रगड़ा होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ उसमें। और काफ़ी बच्चे मेरे से ऑनलाइन सीखते हैं। उसको मैंने थियोटिकल गाइड भी दिया हुआ है, बट थियोटिकल गाइड में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने एसएसबी के लिए कोर्स किया हुआ है, कटसी इंडियन नेवी ने मुझे वो कोर्स करवाया है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स कहलाता है, जिसमें मैं जब आपका इंटरव्यू लूँगा तो आपके साइकोलॉजी को देख के मैं समझ जाऊँगा कि आपका इंक्लिनेशन बाय गॉड आर्म फोर्सेस के लिए है या सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सैलरी और फॉर द सेक ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब आप ये ज्वाइन करना चाहते हो। ये आपकी कमी को मैं बता दूंगा। ये मेरा स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल मेरा टैलेंट नहीं, मतलब जिसने भी इस कोर्स को किया हुआ है उसके अंदर ये एक तैयारी की एक तजुर्बा दिया जाता है। और यदि आर्म फोर्सेस आपको सिर्फ जॉब के लिए या सैलरी के लिए ज्वाइन करना है तो आप मत ज्वाइन कीजिए। आर्म फोर्सेस में आपको सही में इंक्लिनेशन है, कंट्री सर्विस तो हम एक तकिया कलाम हो गया है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस? आई वांट टू सर्व नेशन। सर्व नेशन इज़ वेरी फाइन, सर्व नेशन का बहुत सारा तरीका होता है, बट सर्व नेशन के पीछे आपके अंदर का डिज़ायर क्या है। जैसे मुझे याद है मेरे कैंपस इंटरव्यू में पूछा था, जैसे मैंने बोला कि ही आस्क्ड मी कि वाई डू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस इंडियन नेवी, तो मैंने बोला सर आई वांट टू सर्व नेशन। वहाँ पे ही मुझे रोक दिया। नो नो नो, आई हैव हर्ड एनफ ऑफ सर्विंग नेशन, यू टेल मी एनी अदर रीजन। तो मेरे अंदर में जो इच्छा थी, स्पेशली रेलवे बैकग्राउंड में रहना, रेलवे की लाइफ भी थोड़ा सिविल लाइफ से अलग होता है, ज़्यादा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी होती है। अपने फादर को हमने देखा, फादर मेरे ऑपरेशन डिवीज़न में थे, तो मेरे अंदर जो एक्चुअल डिजायर था वो मैंने बोला कि आई लाइक डिसिप्लिन लाइफ एंड पंक्चुअल लाइफ, दैट्स व्हाई आई थिंक आर्म फोर्सेस कैन गिव मी दैट। सो ये आंसर उनको बहुत अच्छा लगा था। एनीवे अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं सेलेक्ट तो हो गया था कैंपस में, अच्छा ही लगा होगा। तो ये जो रूरल बैकग्राउंड के लोग, और आज के डेट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक गार्जियन आए थे और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ज्वाइन करना चाह रहा है। कोई टॉट, कोई थर्ड पर्सन बीच में जो मीडिएटर होते हैं, कुछ पैसे का डिमांड कर रहे हैं। तो आपके इस माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक नया गैंग है पूरे कंट्री में जो आपसे पैसा ले लेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार होते हैं ये पैसा लेने वाले। आपका सिलेक्शन यदि खुद से हो गया तो वो ये डिक्लेयर करेंगे कि मैंने आपको मदद किया है, तो पैसा रख लेंगे। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ईमानदारी से पैसा वापस कर देंगे। मतलब बहुत फेयर डील चल रहा है। तो ये इस पे मैं बाद में पॉडकास्ट बनाऊंगा। और स्टूडेंट्स को, गार्जियन को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिचौलिए इस तरह के जो भी बीच में आते हैं, ये सारे जो भी इस तरह के बिचौलिए हैं, आप कभी उनके चंगुल में मत आना। पैसा क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। चूँकि मेरे कॉलोनी में ही मेरे पास कोई दौड़ करके आया कि सर आप आर्म फोर्सेस के हो, मेरे से इतना पैसा मांगा गया है। तो मैंने वो क्यों मांगा गया है, तो कह रहे हैं कि सर एसएसबी क्लियर करवा देंगे। तो एसएसबी क्लियर करवा देंगे, तो मैंने तो खैर उसको मना कर दिया, जो भी बताना था मैंने उसको बता ही दिया। लेकिन बाद में मैंने इसको ट्रेस आउट किया तो ये एक नया ट्रेंड है और ये बहुत जगह है। आपसे 1 लाख रुपया सपोज ले लिया, बट इस डिजॉनेस्टी में ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टली इस डिसऑनेस्टी को कर रहे हैं वो। आप सेलेक्ट हो गए अपने टैलेंट से, तो आप वो डिक्लेयर कर देंगे कि मैंने आपका करवा दिया, तो 1 लाख रख देंगे। और यदि आप सेलेक्ट ना हुए तो 1 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया काट करके आपको बाकी पैसे वापस भी कर दे रहे हैं एज ऑफ नाउ, जो मेरे पास रिपोर्ट आता है। तो इस चंगुल में ना फंसें, स्पेशली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ। और जो भी 10th के बाद अपार्ट फ्रॉम योर ICSE और CBSE सिलेबस, बुक को पूरा पढ़िए। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, मैं कंपटीशन सक्सेस रिव्यू का मैं भक्त हूँ। हम लोग उस ज़माने में इसी 2-3 किताबों को पढ़ के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करते थे। उस ज़माने में एक इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन आता था, इंडिया टुडे आता था, ये सब पढ़ते थे हम लोग। और उसमें जो भी जानकारी आती थी उससे हमारा क्वेश्चन पेपर होता था उसमें, वो हम लोग सॉल्व करते थे। और ट्यूशन वगैरह यदि आपको पढ़ना है तो जिस लिंक में आप अपने को कमज़ोर पाते हो, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप जो 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में 1 घंटा का ट्यूशन लोगे, वो टाइम जो बर्बाद हो रहा है, उस टाइम को आज के डेट में आपके पास डिजिटल माध्यम से इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। घर में बैठ के यदि क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करो, जहाँ प्रॉब्लम होता है यूट्यूब के थ्रू भी आप उसको पढ़ ले सकते हो, तो आपका जो ये एनर्जी वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। और कुछ पूछना है अपराजिता? ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं बोलता रहूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मेरा हाँ, आप पूछ लीजिए, फिर मैं कंक्लूड करूँगा। नहीं, आई थिंक मेरे जो भी क्वेश्चंस थे वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं। जस्ट बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, एंड फाइनल वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू कन्वे टू द यूथ डिफेंस एस्पिरेंट्स की उनको अपने दिमाग में क्या टॉप 3 या 4 चीज़ें रखनी चाहिए इफ़ दे वांट टू गेट इनटू द डिफेंस सर्विसेज दैट विल नॉट शेक देयर मोटिवेशन एंड उनका एंडेवर पूरा हो जाए। जैसा मैंने अपने इंटरव्यू के दरमियान बताया, और फिर मैं उसी को रिपीट करता हूँ छोटे में नटसेल में। यदि आर्म फोर्सेस आपको ज्वाइन करना है और आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, तो आप मत ज्वाइन कीजिए। इसको नौकरी समझ के या सैलरी समझ के ज्वाइन मत कीजिए। आपके अंदर एक जुनून है, एक डिसिप्लिन लाइफ का जुनून है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। कंट्री सर्विस तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। और तैयारी का जहाँ तक सवाल है, बहुत ज़्यादा कोचिंग और बहुत ज़्यादा ट्यूशन पे बिलीव मत कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। दुनिया भर की किताबें हैं। आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस बुक को आपने यदि थॉरली पढ़ लिया, और थोड़ी बोलने की स्किल, इंटरव्यू का स्किल, आपस में ही 2-3 का सर्किल बना करके एक दूसरे का इंटरव्यू लेते रहिए, और फिजिकली अपने को फिट कर लीजिए। जैसा मैंने बताया, 5 से 7 किलोमीटर यदि डेली आप दौड़ेंगे, स्विमिंग सीख लीजिए, स्पोर्ट्स में किसी एक स्पोर्ट्स को अपना के रखिए जिसमें आपका फिजिकल एक्टिविटीज होता रहता है। सबसे इजी और सबसे इजीली अवेलेबल गेम होता है बैडमिंटन या वॉलीबॉल। क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट तो आजकल के बच्चे हर गली में खेलते हैं, और इसके अलावा इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप ऑनेस्ट रहिए। कोचिंग में जो आपको सिखाएंगे, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, वो यदि आप सप्रेस करके आर्टिफिशियल बनोगे तो वहाँ पकड़े जाओगे और आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, तो आपके अंदर में यदि आर्टिफिशियल रिप्लाई आप दोगे तो आप पकड़े जाओगे। एसएसबी कोचिंग वगैरह में बेसिक चीज़ें सीखने के लिए ठीक है, बट एसएसबी कोचिंग करने के बाद अपने आप के ओरिजिनल क्वालिटी को आप मत दबाना। इंटरव्यू में आप जो आपके अंदर की भावना है, फीलिंग है, उसको आप बताना। और ऑल द बेस्ट यूथ को। मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूथ, इंडिया का हर यूथ कम से कम 5 साल आर्म फोर्सेस में जॉब करे। जो आर्म फोर्सेस में आपके अंदर जो एक जुनून पैदा हो जाता है, वो ज़िंदगी भर आपको यंग, फिट, मेंटली हैप्पी एंड गो गेटर बनाता है। तो ये तो मेरी इच्छा है, मैं कोई कंट्री का हेड नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सिलेबस हो जो कम से कम हर स्कूल अप टू इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी, प्रोफेशनल कॉलेज में भी कम से कम एनसीसी हो, स्काउट हो। इससे आपके अंदर के एक जुनून को पैदा करते हैं। एक यूनिफॉर्म लाइफ, यदि आपको यूनिफॉर्म पहन करके एनसीसी में ही आप 5 साल 6 साल निकाल देते हो, तो हालांकि उसमें जब मुझे भी एनसीसी में जाने की इच्छा थी, मैं नहीं गया क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट बोलो या टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है। स्टडी करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो स्टडी का टाइम को आप यदि इन चीज़ों में ज़्यादा रखते हो तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि मुझे स्टडी करने का टाइम कम मिल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल है, आपको खुद से करना है। और ऑल द बेस्ट। कोचिंग वगैरह पे, ये पैसे वगैरह वाले पे के पीछे मत पड़िएगा। अपने अंदर अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को जानिए। सेल्फ लव, सेल्फ असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट। Right. I थैंक यू think वेरी मच अपराजिता। I think this is a very good note to end the podcast. Thank you very much for imparting such great amount of knowledge, and I'm sure कि जो भी viewers होंगे, जो भी youth होंगे, जो भी defense aspirants होंगे, उनको एक अच्छा रास्ता मिला होगा on how to approach things. And to sum this all up, जो मुझे जितना समझ आया है, that passion, honesty, discipline and hard work is the key जो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। Like पापा said that somebody जिनको डिफेंस में जाने का फिर मन नहीं था because of the rigorous training, to then serving the nation in the Indian Navy for 32 years
is in itself is a very good example कि हार मानने से नहीं होता कुछ, and never say never. It is always your inner voice of not giving up that will take you places. So thank you very much for hearing us out, and we hope कि आपको ये content अच्छा लगे. So please like, share and comment, and if you would like Papa to make such more videos, such more podcast on defense topic or any other topic, SSB related or anything, then you can comment below on the podcast or reach out to him on his Instagram. And yes, thank you very much. See you soon.